our neighboring nation Bangladesh and what all is happening there. Well, tensions are rising at the Indo-Bangladesh border at this given point in West Bengal as we speak, as 63 ISKCON monks, all Bangladeshis with valid travel documents, were prevented from crossing over to India on Saturday evening and Sunday morning, as per the Bangladeshi media outlets and ISKCON Kolkata. These 63 people were stopped at the Benapole land port, the Bangladeshi side of the international border, by Bangladeshi authorities or for suspicious activities. That is what the reports have claimed. Now, in the backdrop of this, Bharatiya Janata Party has announced a demonstration at the Petropole border in North 24 Parganas at 10 a.m. today. Protest organized in collaboration with the Akhil Bharatiya Sant Samiti aim is to halt trade at the border and pressure Bangladesh to address attacks on minority Hindus and temples. These are the visuals that we are in fact bringing to you from Bangladesh with regards to past attacks that's taken place, which is the reason that's been cited for this agitation to take place in the first place. Well, BJP MLA Ashok Kirtania has stated that this is an apolitical movement and that Congress and left leaders are welcome to join our goal, and the goal is to highlight the plight of Hindus in Bangladesh. Now, BJP General Secretary Agnimitra Paul has accused Bangladesh's interim government of failing to protect minorities. She has said millions of Hindus in India will not remain silent while our brothers and sisters suffer across the border. Earlier, violent protests have taken place in Bangladesh following Chinmoy Krishnodas's arrest on sedition charges. Furthermore, ISKCON claimed that another monk, Shyam Das, was detained without reasons, further fueling the anger. Meanwhile, the Trinamool Congress has criticized the BJP's approach, arguing that protests in West Bengal cannot be influencing international policy. They have even asked BJP leaders to go speak to the centre, speak to MEA with regards to this very matter, so that there are pertinent decisions that are taken place on the external affairs front, so that these situations can be handled, and more than handled, can be addressed by our government, by the Indian government. देखिए, बांग्लादेश की सिचुएशन बहुत ही खराब है। इस तरीके से हिंदू मंदिर, हिंदू मठ, हिंदू सन्यासियों के ऊपर एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है, अटैक हो रहा है, वो भी सरकारी अटैक। ऐसा नहीं कि जनता अटैक कर रही है या कोई कम्युनल ताकत है वो अटैक कर रही है, सरकार कर रही है, करा रही है। तो इससे बांग्लादेश की हिंदू आतंकित है और पश्चिम बंगाल के हिंदू चिंतित है, क्योंकि हम सोचते थे कि बांग्लादेश और बंगाल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और पश्चिम बंगाल के हिंदू इसलिए चिंतित है कि बांग्लादेश में अगर ऐसा हो सकता है तो पश्चिम बंगाल में भी आगे आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। इसलिए बंगाल के हिंदुओं को एक होकर रहना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। इस्कॉन के गवर्निंग बॉडी कमिश्नर के चेयरमैन श्री गुरु प्रसाद स्वामी जी ने इस्कॉन कम्युनिकेशंस मिनिस्ट्री के माध्यम से एक पूरे विश्व के इस्कॉन मंदिरों के लिए एक स्पेशल अपील भेजा है, जिसके अंतर्गत आज दिसंबर 1 तारीख रविवार के दिन विश्व के 1100 इस्कॉन मंदिरों में जो रविवार के दिन सारे हमारा समुदाय एकत्रित होता है, वहाँ पर जो कीर्तन आयोजित किया जाता है, आज का वो कीर्तन और प्रार्थना बांग्लादेश के सभी भक्तों के संरक्षण के लिए और उनके उद्धार के लिए किया जा रहा है। साथ साथ जितने अल्पसंख्यक समुदाय बांग्लादेश में, उनके भी संरक्षण के लिए और उनके समर्थन में ये प्रार्थना आयोजित किया जा रहा है,
क्योंकि संकीर्तन यज्ञ संकीर्तन प्रायजंती ही सुमेधश। हम मानते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है और गीता में भी कहा गया है, अगर बहुत सारे लोग एकत्रित होकर जब अपील करते हैं तो सरकार सुनती है उस बात को। उसी प्रकार ऊंची सरकार अर्थात ईश्वर जब कई भक्त लोग एकत्रित आकर संकीर्तन करें, सम्यक मिलियते अर्थात सब लोग मिलकर जब कीर्तन करें, भगवान की कीर्ति गाएं, उनसे अपील करें, तो फिर भगवान अवश्य इस प्रार्थना को सुनते हैं। इस संदर्भ में हम लोग यहाँ पर ये कीर्तन का आयोजित किए हैं। यहाँ पर हम श्रीमद् भागवत कथा करेंगे। बाबा काशी विश्वनाथ भोलेनाथ बाबा कोटि कोटि नमन करते हैं। यहाँ के सभी विद्वानों को अनंत अनंत नमन करते हैं, वो आशीर्वाद दें और उन सबसे एक प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसा आशीर्वाद दें जिससे सनातन बोर्ड सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए निर्मित हो सके, क्योंकि यहाँ के विद्वान और बाबा की कृपा अगर हमारे ऊपर हो जाएगी, और यहाँ के तो सांसद ही हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ की कृपा के कारण ही सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। हम प्रार्थना करते हैं कि वो बन जाए। उसका हम बहुत बड़ा विरोध करते हैं और इतना विरोध करते हैं कि आप पूरे भारतवर्ष के जितने भी विश्व में सनातनी हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बांग्लादेश की सरकार को सचेत होना चाहिए और अगर वो नहीं बचा सकती हिंदुओं को, तो हिंदू धर्म एक हिंदू राष्ट्र अलग से उसी बांग्लादेश में बनाए।